Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.4 प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इक्ता सिस्टम. द एडमिनिस्ट्रेशन in the areas that were outside the core political area was carried out in a number of ways. केंद्रीय राजनीति क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में प्रशासन को अनेक प्रकार से चलाया जाता था. It depend on the degree of political control which was exercised over the areas. यह उस क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण के स्तर पर निर्भर करता था. The territorial expansion and consolidation of the Sultanate was a process which continued throughout the 13th and 14th century. सल्तनत की सीमा को बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने की प्रक्रिया 13वीं और 14वीं सदी तक जारी रही थी. Some of the newly conquered areas were brought directly under the control of the Sultanate and some other areas remained semi-autonomous. अब देखिए, लड़ाई में जीते गए कुछ नए क्षेत्र सीधे सल्तनत के नियंत्रण में आ जाते थे, जबकि अन्य क्षेत्रों पर आंशिक नियंत्रण था. Thus, different control mechanisms were adopted by the sultans for these areas. इस प्रकार इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए सुल्तान ने अलग अलग कार्य प्रणाली अपनाई. In the areas that were loosely affiliated to the Sultanate, a few officials were appointed by the center as a symbol of imperial presence, but everyday administration remained in local hands. The interest of the center in these areas was mostly economic, that is, the collection of the revenue. सल्तनत से स्वतंत्र रूप से संबंध क्षेत्रों के प्रतीक के रूप में केंद्र द्वारा कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, परंतु रोजमर्रा का प्रशासन स्थानीय हाथों में था. इन क्षेत्रों में केंद्र की रुचि ज्यादातर आर्थिक मामलों में आर्थिक राजस्व इकट्ठा करने में थी. The provinces were placed under the charge of the governors who were responsible for the overall administration of the area. इन प्रांतों की देखरेख करने की जिम्मेदारी गवर्नरों सूबेदारों पर थी और गवर्नर सूबेदार इस क्षेत्र के संपूर्ण प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे. This involved ensuring the collection of revenue, maintaining law and order, and keeping rebellious elements under control. अब देखिए, उनकी जिम्मेदारी में एकत्रित राजस्व को सुनिश्चित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और विद्रोहियों को नियंत्रण में रखना सम्मिलित था. He was a deputy of the Sultan in his area. अब देखिए, वह अपने क्षेत्र में सुल्तान का प्रतिनिधि था. Since the officials were frequently transferred and not familiar with the areas, they were generally dependent on local officials to perform their duties. चूंकि अधिकारियों का अक्सर हस्तांतरण होता रहता था, उनको ट्रांसफर किया जाता था और वे उन क्षेत्रों से परिचित नहीं थे, इसलिए प्राय उन्हें अपने कार्यों को करने के लिए स्थानीय अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था. The collection of the revenue was not possible without the help of the local official. स्थानीय अधिकारियों की सहायता के बिना राजस्व वसूल करना संभव नहीं था. Thus, the governor and the local power blocks worked in close association with each other. इसलिए गवर्नर और स्थानीय शक्तियां आपसी सहयोग से कार्य करते थे. At times, the combination created problems for the Sultan, as the governors
used to become powerful with the help provided by the local rulers and rise in rebellion against the sultan. कभी कभी यह संगठन सुल्तान के लिए परेशानियां पैदा कर देता था, क्योंकि गवर्नर स्थानीय शासकों की सहायता से शक्तिशाली बन जाते थे और सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे. During the 14th century, the provinces were partitioned into sheikhs for administrative convenience. 14वीं सदी के दौरान प्रशासनिक सुविधा के लिए इन प्रांतों को शिख्स में विभाजित कर दिया गया. The Sikhs were administered by the सिकदर. इन सिख्स का प्रशासन सिकदर द्वारा चलाया जाता था. Subsequently, the Sikhs got transformed into सरकार during the अफगान period. अब इसके बाद अफगान काल के दौरान ये सिख्स सरकार में बदल दिए गए. फौजदार was another officer along with सिकदर at the provincial level. प्रांतीय स्तर पर सिकदर के साथ साथ फौजदार एक अन्य अधिकारी भी होता था. Their duties are not clearly articulated and often the role of the two seem overlap. इनके कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया था और इन दोनों के कार्य मिले जुले थे. The Sikdar assisted the governor in the maintenance of law and order and provided military assistance. सिकदर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सुल्तान की सहायता करते थे और उसे सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराते थे. He also supervised the functioning of the smaller administrative units. The duties of the Fauzdar were similar to the Sikdar. The Kotwals were placed under the Fauzdar. अब देखिए, वह छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों के कार्य की भी निगरानी करता था. फौजदार और सिकदार के कार्य समान थे. कोतवाल फौजदार के अधीन होते थे. ठीक है. प्रांतीय स्तर पर अब देखिए, बोल रहे हैं कि कोतवाल फौजदार के अंदर काम करते थे. आगे देखिए, द अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द प्रोविंशियल लेवल वर बरीत्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड रिपोर्टर, एंड द साहिब ए दीवान who maintained the financial accounts of the provincial income and expenditure. प्रांतीय स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी बारिद, खुफिया अधिकारी तथा रिपोर्टर तथा साहिब ए दीवान यह प्रांतीय आय और व्यय का वित्तीय लेखा जोखा रखते थे. तो प्रांतीय स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी बारिद थे और साहिब ए दीवान थे. अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे इक्ता सिस्टम के बारे में.